Jai Shri Krishna, the Bhagavad Gita, chapter 11th. So far the Lord described the yogas of action, the yoga of knowledge, His divine glories, the description of the formless God and the God with form, and now he moves on to reveal his divine form to Arjun. Chapter 11th, Arjun said, "Thanks to the most profound words of spiritual wisdom that you have spoken out of kindness to me, this delusion of mine has entirely disappeared." So, thanks to you, God, for sharing your profound knowledge. My delusion has completely disappeared, my doubt has completely vanished. The knowledge has dawned upon me that you are the eternal being, birthless, deathless, and पुरातन हो आप और इटर्नल हो, इम्पेरिशेबल बीइंग हो, तो ये सारा ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है। इसके लिए आपका बहुत थैंक्स। For Krishna, I've heard from you in detail an account of the evolution and dissolution of beings and also your immortal glory. तो मैंने इस संसार की सृष्टि और विध्वंस के विषय में पूरा सुन लिया है और आपकी अपार महिमा के बारे में भी जान लिया है। Lord, you are precisely what you declare yourself to be, but I long to see your divine form possessed of wisdom, glory, energy, strength, valor, and effulgence. O Purushottam, the Supreme Being. So I wish to know you in all your glory, the way you are describing yourself, that you are possessed of wisdom, glory, energy, strength, valor, effulgence. तो ये सब जो आपके एस्पेक्ट्स हैं इसके वाली डिवाइन फॉर्म को मैं देखना चाहता हूँ। Krishna, if you think that it can be seen by me, then O Lord of Yoga, reveal to me your imperishable form. तो कृपया मुझे अपना वो विराट रूप दिखाइए जो कि आप जैसे कि बता रहे हैं कि आप सबका आदि मध्य और अंत हैं, आप काल के भी महाकाल हैं, आप सृष्टि के रचयिता के भी पिता हैं। तो वो जो आपकी डिवाइन फॉर्म है वो मुझे, यदि आप सोचते हो मैं फिट हूँ उसको देखने के, तो मुझे दिखाइए। Shri Bhagavan said, Arjun, behold presently my manifold, multifarious divine forms of various colors and shapes in their hundreds and thousands. तो अर्जुन मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना वो विराट रूप, सैकड़ों हजारों भिन्न भिन्न तरह का जो मेरा रूप है वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। Behold in me, Arjun, the 12 sons of Aditi, the 8 Vasus, the 11 Rudras, the 2 Ashwini Kumaras, and the 49 Maruts, and witness many more wonderful forms never seen before. तो सृष्टि के जो मेन लोग हुए हैं, जैसे कि 12 sons of Aditi, आदित्य 12 आदित्यों को देखो, और 8 वसुस को देखो, 11 रुद्रास को देखो, 2 अश्विनी कुमारास को देखो, 49 मारुत्स को देखो। तो मेरे विराट रूप में इन सबको प्रेजेंट देखो, जैसा कि मैंने क्लेम किया है कि मैं ये सब हूँ। तो Arjun, behold, as concentrated within this body of mine, the entire creation consisting of both animate and inanimate beings and whatever else you desire to see. तो इस मेरे शरीर में तुम इस संपूर्ण जगत को देखो जिसमें एनिमेट और इनएनिमेट बीइंग्स, लिविंग और लाइफलेस बीइंग्स दोनों हैं। और जो भी तुम देखना चाहते हो वो मेरे इस रूप में देखो। But surely you cannot see me with these human eyes of yours, therefore I vouchsafe to you the divine eye, with this you behold my divine power of yoga. तो तुम श्योरली तुम अपने इन ह्यूमन आइज से ये मेरे को नहीं देख पाओगे,
क्योंकि वो बहुत इफल्जेंट डिवाइन फॉर्म है। उसको देख के तुम्हारी आंखें वो ब्लाइंडिंग लाइट वाली जो है एफल्जेंस वाला मेरा रूप है, उसको तुम इन ह्यूमन आइज से नहीं देख पाओगे। आई वाउट सेफ टू यू द डिवाइन आई, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ जिससे कि तुम उन डिवाइन फॉर्म को देख के टॉलरेट कर पाओ। चुंधियाने वाली रोशनी है उसमें, तो मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ जो कि उसको सहन कर सके, उस रूप को, उस दृश्य को। संजय सेड, माय लॉर्ड, हैविंग स्पोकन दस, श्री कृष्ण द सुप्रीम मास्टर ऑफ योग forthwith revealed to अर्जुन his supremely glorious divine form। तो संजय ने धृतराष्ट्र को रिपोर्ट किया कि ऐसा बताने के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। Arjun saw the supreme deity possessing many mouths and eyes, presenting many a wonderful sight, decked with many divine ornaments, wielding many uplifted divine weapons, wearing divine garlands and clothes, animated all over with divine sandal pace, full of all wonders infinite and having faces on all sides। सो जैसे दुर्गा और काली का बहुत पुलकित करने वाला रूप है, दुर्गा के अष्टभुजाएं हैं, और इस तरह से भगवान को उसने देखा, सुप्रीम डीटी परमात्मा को देखा, पोसेसिंग मेनी माउथ्स एंड आईज, उसके बहुत माउथ्स थे और बहुत नेत्र थे, बहुत मुखों वाला, बहुत नेत्रों वाला, प्रेजेंटिंग मैनी वंडरफुल साइट, बहुत विचित्र दृश्य था। डेक्ड विद मैनी डिवाइन ऑर्नामेंट्स, बहुत से दैवी आभूषण पहने हुए थे, विल्डिंग मैनी अपलिफ्टेड डिवाइन वेपन्स, और बहुत डिवाइन वेपन्स उठाए हुए थे, शंख चक्र गदा इत्यादि, वेयरिंग डिवाइन गार्लैंड्स एंड क्लोथ्स, और दैवी तरह की ड्रेस पहनी हुई थी, हार पहने हुए थे, एनॉइंटेड ऑल ओवर विद डिवाइन सैंडल पेस्ट, और दिव्य गंध का अनुलेपन किया हुआ था, फुल ऑफ ऑल वंडर्स इनफाइनाइट एंड हैविंग फेसेस ऑन ऑल साइड्स। तो बहुत विचित्र, बहुत हैरान करने वाला, बहुत पुलकित करने वाला वो रूप था, हैविंग फेसेस ऑन ऑल साइड, चारों तरफ मुखों वाला। If there be the effulgence of 1,000 suns bursting forth all at once in the sky, even that would hardly be like the splendor of the mighty Lord। तो यदि 1,000 सूर्य एक साथ प्रकाशमान हो जाए, वो भी मैच नहीं कर सकते लॉर्ड की उस एफल्जेंस से, प्रकाश से। 1,000 सूर्य भी इकट्ठे प्रकाशमान हो जाए तो वो भी मैच नहीं करते भगवान के उस विराट रूप की प्रकाश से। Concentrated at one place in the person of that supreme deity, Arjun then beheld the whole universe with its manifold divisions। तो वहाँ कंसंट्रेटेड देखा अर्जुन ने भगवान के अंदर संपूर्ण जगत को, तीनों लोकों को, संपूर्ण जगत को उनके उस रूप में देखा। Then Arjun, full of wonder and with his hair standing on end, reverentially bowed his head to the divine Lord and with joined palms addressed him thus। तो अर्जुन ने फिर बहुत पुलकित होकर और बहुत उसके रोए खड़े हो गए, बहुत विस्मित होकर उसने बहुत आदर के साथ भगवान को नमस्कार किया और उनसे ऐसे कहा। अर्जुन said, Lord, I behold within your body all gods and hosts of different beings, Brahma throned on his lotus seat, Shiva and all rishis and celestial serpents। हे भगवान, मैं आपके अंदर सब भगवानों को देखता हूँ, ब्रह्मा को कमल पे बैठे ब्रह्मा को देखता हूँ, शिवा को देखता हूँ, और सब ऋषियों और सर्पों को देखता हूँ। O Lord of the universe, I see you endowed with numerous arms, bellies, mouths and eyes, and having innumerable forms extended on all sides. O Lord, manifested as you are in the form of the universe, I see neither your beginning nor middle nor your end। तो हे भगवान, मैं आपको बहुत से भुजाओं और पेट और मुखों से I see you endowed with
आपके बहुत सारे भुजाएं हैं, बहुत सारे पेट हैं और बहुत सारे मुख हैं, एंड हैविंग इन्यूमरेबल फॉर्म्स एक्सटेंडेड ऑन ऑल साइड्स, और आप चारों तरफ आपका तरह तरह के अवतार और देवी देवता ऋषि सब आपके इस रूप का हिस्सा है। ओ लॉर्ड मैनिफेस्टेड एज यू आर इन द फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स आई सी इन द, तो ये जैसे कि आपका ये विराट रूप है, इसमें मैं संपूर्ण जगत को देखता हूँ और मेरे को आपका कहीं भी आदि मध्य और अंत नहीं नजर आ रहा। I see you endowed with diadems, mace, and discus, a mass of splendor going all round, having the brilliance of a blazing fire and the sun, hard to gaze at and immeasurable on all sides. तो मैं आपको शंख चक्र गदा किरीट आदि से भरपूर देखता हूँ, और आपको सूर्य के समान प्रकाशमान तेज का पुंज जैसे देखता हूँ, और आपकी तरफ नज़र उठती नहीं है, एंड इमेजरेबल ऑन ऑल साइड्स, और चारों तरफ से आपका आदि मध्य और अंत नहीं पता चल रहा। You are the supreme indestructible, worthy of being known. You are the ultimate refuge of this universe. You are again the protector of the ageless Dharma. I consider you to be the eternal imperishable being. You are the supreme indestructible. आप परमात्मा हैं, worthy of being known, जानने योग्य हैं। You are the ultimate refuge of the universe. ये सारी सृष्टि जो है आप में लय हो जाती है। You are again the protector of the ageless धर्म, आप धर्म को के रक्षक हो। I consider you to be the eternal imperishable being. मैं आपको अनंत परमात्मा के तौर पे देखता हूँ। I see you without beginning, middle, or end, possessing unlimited prowess and endowed with numberless arms, having the moon and the sun for your eyes and blazing fire for your mouth and scorching this universe by your radiance. और मैं आपको बिना आरंभ मध्य और अंत के देखता हूँ, और अनलिमिटेड प्रोवेस और बहुत शक्तिशाली देखता हूँ। एंडाउड विद नंबरलेस आर्म्स हैविंग, तो आपकी कई भुजाएं देखता हूँ, और आपके नेत्रों की जगह चांद और सूरज है, एंड ब्लेजिंग फायर फॉर योर माउथ, और आपके मुंह की जगह पे अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि है, एंड स्कोचिंग दिस यूनिवर्स बाय योर रेडियंस। तो ये सूर्य की तपिश और अग्नि की तपिश से ये सारा जगत जो है तपायमान हो रहा है। द interspace between heaven and earth and all the quarters are entirely filled by you alone. तो स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक सारी जगह में आप ही भरे हुए हो। Seeing this transcendent dreadful form of yours, O soul of the universe, all the three worlds feel greatly alarmed. तो आपकी ये बहुत हैरान कर देने वाली जो विराट रूप को देखकर तीनों लोकों में सब लोग भयभीत हो रहे हैं। होस्ट ऑफ गॉड्स आर एंटरिंग यू, बहुत सारे देवी देवता लोग आप में प्रवेश कर रहे हैं। सम विद पाम्स जॉइंड आउट ऑफ फियर, तो कुछ हथेलियों को जोड़कर डर के मारे भयभीत होकर हथेलियों को जोड़कर आर रिकाउंटिंग योर नेम्स एंड ग्लोरीज, आपका नाम जप रहे हैं। मल्टीट्यूड्स ऑफ महर्षिज एंड सिद्धार्थ सेइंग लेट देयर बी पीस आर एक्सटोलिंग यू बाय एक्सीलेंट हिम्स, और ऋषि मुनि आपका जप कर रहे हैं और मंत्रोच्चारण कर रहे हैं आपको याद करके। The 11 Rudras, 12 Adityas and 8 Vasus, the Sadhyas and Vishwadevas, the 2 Ashwini Kumaras and 49 Maruts, as well as the mains and multitudes of Gandharvas, Yakshas, Asuras and Siddhas, all these gaze upon you in amazement. तो आदित्य 12 आदित्य 12 आदित्य 8 Vasus, Sadhyas, Vishwadevas, 2 Ashwini Kumaras, 49 Maruts, all are looking at you with amazement, surprise. Lord, seeing this stupendous and dreadful form of yours, possessing numerous mouths and eyes, many arms, thighs and feet, many bellies and large teeth, terrible to look at, the worlds are terror-stricken, so am I. तो सारा जगत आपके इस विराट रूप को देख के बहुत भयभीत हो रहा है, और मैं भी बहुत भयभीत हो रहा हूँ।
Lord, seeing your form reaching the heavens, effulgent, multicolored, having its mouth wide open and possessing large flaming eyes, I with my inner self frightened have lost self control and find no peace. तो भगवान आपका ये रूप देखकर, जो कि हेवन और अर्थ में पूरा फैला हुआ है, एफल्जेंट, बहुत प्रकाशमान, मल्टी कलर्ड, कई रंगों वाला, having its mouth wide open, मुख खुला हुआ, and possessing large flaming eyes, और नेत्रों की जगह चांद और सूरज है, मुख की जगह पे अग्नि है. I with my inmost self frightened, मैं जो हूँ, मेरा अंतर जो है पूरा भयभीत हो गया है. I have lost self control and find no peace. मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिल रही और मेरा I have lost my self control. Seeing your faces frightful on account of their awesome teeth. तो आपका फेस बहुत डरावना लग रहा है, बिकॉज ऑफ योर टीथ, आपके दांतों की वजह से, एंड ब्लेजिंग लाइक द फायर एट द टाइम ऑफ यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन, जैसे प्रलय के समय अग्नि होती है, ऐसे आपका मुख नज़र आ रहा है. आई एम अटली बिविल्डर्ड एंड फाइंड नो पीस, मैं पूरी तरह से भयभीत हूँ और मुझे बिल्कुल शांति नहीं मिल रही. देयरफॉर हैव मर्सी ऑन मी, ओ लॉर्ड ऑफ सेलेस्टियल्स, ओ अबोर्ड ऑफ द यूनिवर्स, कृपया मुझ पे दया करें, हे परमात्मा, परमपिता परमात्मा. All those sons of Dhritarashtra with hosts of kings are entering you, Bhishma, Drona, and yonder Karna with the principal warriors on our side as well, are rushing headlong into your fearful mouths, looking all the more terrible on account of their awesome teeth. Some are seen stuck up in the gap between your teeth with their heads crushed. तो सारे जो सैनिक हैं कौरवों की साइड के और हमारी साइड के, वो आपके मुख में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं, कि जैसे मृत्यु उनको डिवॉर कर रही है, काल उनको ग्रस रहा है. तो मेरी सेना के सैनिक और कौरवों की सेना के सैनिक सब आपके मुखों में प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपके दांतों में उनके हेड्स क्रश होके वो चिपके हुए हैं. As the myriad streams of rivers rush towards the sea alone, so do those warriors of the mortal world enter your flaming mouths. तो आपके मुख में जो ज्वाला धधक रही है, उसमें वो सारे सैनिक प्रवेश करते जा रहे हैं, जैसे पानी के झरने समुद्र की तरफ बहते हैं, ऐसे वो अनायास ही आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं सैनिक. As moths rush with great speed into the blazing fire for extinction, जैसे अनायास ही जुगनू अग्नि की तरफ, फ्लेम की तरफ, लौ की तरफ बढ़ते हैं, ऐसे वो सैनिक आपकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं. As moths rush with great speed into the blazing fire for extinction out of infatuation, even so all those people are with great rapidity entering your mouths to meet their doom. तो इसी तरह वो जैसे जुगनू लौ की तरफ मोह से बढ़ते चले जाते हैं, ऐसे ही वो सब सैनिक आपके मुखों में प्रवेश, अनायास ही प्रवेश करते जा रहे हैं. Swallowing through your blazing mouths all those people on all sides, you are licking your lips, O Lord Vishnu. Your terrible rays are devouring the whole universe with their fierce glow and are scorching it. तो आप अपने मुखों से उनको निगल रहे हो, and you are licking your lips, आप अपने होंठों को चाट रहे हो. O Lord Vishnu, your terrible rays are devouring the whole universe. आपकी जो किरणें हैं वो सारे जगत को व्याप्त कर रही है. With their fierce glow and are scorching it, वो उसकी तपिश से सारा जगत सारा जगत समग्रम जगतम भासः तव उग्र प्रतपंती, बर्न हो रहे हैं, जल रहे हैं, सारे लोग जो हैं आपके उग्र तपिश से जल रहे हैं.
टेल मी हु यू आर विद द फॉर्म सो टेरिबल, कृपया मुझे बताएं आप इतने विराट रूप वाले कौन हैं. माई ओबेसन्स टू यू, मेरा प्रणाम है आपको. ओ बेस्ट ऑफ गॉड्स, हे परमात्मा, बी काइंड टू मी, कृपया मुझ पे दया करें. आई विश टू नो यू द प्रिमेबल बीइंग, मैं आप परमात्मा को जानना चाहता हूँ. फॉर आई नो नॉट योर पर्पस, क्योंकि मुझे पता नहीं आप किस कारण से यहाँ आए हैं. शिव भगवान सेड, आई एम माइटी काल, मैं काल हूँ, मैं काल का भी महाकाल हूँ. द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स, सारे संसार का नाश करने वाला काल हूँ मैं. आई एम आउट टू एक्सटर्मिनेट दीज पीपल, मैं इन लोगों को के विनाश के लिए आया हूँ. इवन विदाउट यू ऑल दीज वॉरियर्स अराइड इन द एनिमीज कैंप मस्ट डाई. तो यदि तुम हथियार नहीं भी उठाओगे, एनिमी के कैंप के, शत्रु के साइड के सारे वॉरियर्स फिर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे. Therefore do you arise and win glory, conquering foes, enjoy the affluent kingdom. These warriors stand already slain by me, be you only an instrument, Arjun. इसलिए अर्जुन उठो और ग्लोरी को प्राप्त करो, कॉन्करिंग फोर्स, शत्रु का नाश करके, एंजॉय द एफ्लुएंट किंगडम, राजपाट को एंजॉय करो, सुख भोगो, राजपाट का सुख भोगो. दिस वॉरियर स्टैंड ऑलरेडी स्लेन बाय मी, ये सैनिक सब मेरे द्वारा ऑलरेडी मरे हुए हैं. बी द ओनली एन इंस्ट्रूमेंट अर्जुन, तुम केवल एक माध्यम बन के इनको वध कर दो, युद्ध करो. Do you kill Drona and Bhishma, Jayadratha and Karna and other brave warriors who stand already killed by me? Fear not, fight and you will surely conquer the enemies in the war. तो तुम द्रोण को, कर्ण को, भीष्म को, जयद्रथ को, सबका वध करो. ये सब ऑलरेडी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं. फाइट एंड यू विल कॉन्कर द वर्ल्ड, तो तुम युद्ध करो और तुम्हारी अवश्य जीत होगी. Sanjay said, hearing these words of Bhagwan Keshav, Arjun tremblingly bowed to him with folded hands and bowing again in extreme terror, spoke to Shri Krishna in a choked voice. तो संजय अब धृतराष्ट्र को बता रहा है कि भगवान के इन शब्दों को सुनकर अर्जुन कांपते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया, अत्यंत भयभीत होकर, और ये कहा. Arjun said, Lord, well it is the universe exults and is filled with love by chanting your name's virtue and glory. Terrified Rakshasas are fleeing in all directions and all the hosts of Siddhas are bowing to you. तो ये उचित ही है भगवान कि ये सारा संसार जो है आपका नाम जपता है और भजन करता है, आपकी महिमा गाता है, और भयभीत हुए राक्षस भागे जा रहे हैं चारों दिशाओं में, और सिद्ध जो है वो आपको प्रणाम कर रहे हैं, योगी ऋषि आदि आपको प्रणाम कर रहे हैं. ओ ग्रेट सोल, व्हाई शुड दे नॉट बो टू यू who are the progenitor of Brahma himself and the greatest of the great. तो वो साधु लोग आपको क्यों ना प्रणाम करें, आप तो महानतम के भी महान हो. O infinite Lord of the universe, O abode of the universe, you are that which is existent and that which is non-existent and also that which is beyond both, with the indestructible Brahm. तो तुम नश्वर शरीर हो यानी प्रकृति हो, और तुम उसमें रहने वाली जीवात्मा हो यानी पुरुषा हो, और तुम उनसे परे परमात्मा हो. तो क्यों ना तुम्हें सारे लोग प्रणाम करें. You are the primal deity, the most ancient person. You are the ultimate resort of this universe. You are both the knower and the knowable, and the highest abode. It is you who pervade the universe, O infinite one, assuming endless forms. तो तुम पुरातन हो, परमात्मा हो. यू आर द अल्टीमेट रिसोर्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, ये सारा संसार तुम में लय हो जाएगा. यू आर बोथ द नोअर एंड द नोएबल, तुम जानने योग्य हो और सबको जानते हो, सबके जानने वाले, ऑल ओमनिशिएंट एंड सबके जानने योग्य, एंड द हाईएस्ट अबोर्ड, और सबका अल्टीमेट रिसोर्ट, जिसमें सब प्रकृति लय हो जाएगी. इट इज़ यू हु परवेड द यूनिवर्स, तुम सर्वत्र विद्यमान हो. इन्फिनिट वन, अस्यूमिंग एंडलेस फॉर्म्स, तुम कभी कुछ बन के, कभी कुछ बन के, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में तुम सर्वत्र विद्यमान हो.
You are Vayu, Yam, Agni, the moon god Varun, Brahma, the father of Brahma himself. Hail, hail to you 1,000 times. Salutations, repeated salutations to you again and again. तो आप सब कुछ हो, आप वायु हो, यम हो, अग्नि हो, इंद्र हो, ब्रह्मा हो और ब्रह्मा के भी पिता हो। मेरा आपको बारंबार नमस्कार है, मेरा आपको फिर भी नमस्कार है, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। O Lord of infinite prowess, my salutations to you from front and from behind. O soul of all, my obeisance to you from all sides. Indeed, you who possess infinite might pervade all, therefore you're all. तो मैं चारों तरफ से आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप सर्वत्र विद्यमान हैं और आप सबके आप सब कुछ हैं। आप ये यू आर ऑल, यू परवेड ऑल, आप सर्वत्र विद्यमान हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं, एंड यू आर ऑल, ये सब जगत आपसे व्याप्त है। द वे आई हैव importunately called out either through intimacy or thoughtlessly, He Krishna, He Yadav, He Sakhi, and so on, unaware of the greatness of yours and thinking you only to be a friend, and the way in which you, O Achyut, the infallible, have been slighted by me in jest, while at play, reposing, sitting, or at meals, either alone or even in the presence of others. For all that, O immeasurable Lord, I crave forgiveness from you. तो हे भगवान, मैंने अनजाने में कभी आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखी ऐसे बहुत स्लाइटली आपको एड्रेस किया, कृपया मुझे माफ़ करें। और मैंने कभी मजाक में, कभी अनजाने में आपके साथ मजाक किया, आपकी हंसी उड़ाई, उसके लिए भी आप मेरे को क्षमा करें। You are the father of the moving and unmoving creation. तो इस नश्वर और अनश्वर सारी प्रकृति के आप रचयिता हैं। नहीं, द ग्रेटेस्ट टीचर वर्दी ऑफ अडोरेशन, आप सबके गुरु हैं, आप सम्मान करने योग्य सबके गुरु हैं। ओ लॉर्ड ऑफ इनकम्पेरेबल माइट इन ऑल द थ्री वर्ल्ड्स, देयर इज नन एज इवन इक्वल टू यू, हाउ देन कैन एनीवन बी बेटर देन यू। तो इस सारे तीनों लोकों में आपके बराबर भी कोई नहीं है, तो आपसे बेटर कैसे कोई हो सकता है। Therefore, Lord, prostrating my body at your feet and bowing low, I seek to propitiate you, the ruler of all and worthy of all praise. It behoves you to bear with me, even as a father bears with his son, a friend with his friend, and a husband with his beloved consort. तो हे भगवान, मैं अपने शरीर आपके चरणों में प्रोस्ट्रेट करके, दंडवत करके आपको झुक के प्रणाम करता हूँ और मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्रोपिशिएट यू, आई वॉन्ट टू प्लीज़ यू, द रूलर ऑफ ऑल, सबके इस संपूर्ण जगत के रूलर एंड वर्दी ऑफ ऑल प्रेज, और सारे प्रेज के लायक। इट बिहोव्स यू टू बेयर विद मी इवन एज, तो आप कृपया मुझे क्षमा करें, जैसे एक पिता पुत्र को क्षमा करता है, एक मित्र मित्र को क्षमा करता है और एक पति अपनी पत्नी को क्षमा करता है। Having seen your wondrous form which was never seen before, I feel transported with joy. At the same time, my mind is tormented by fear. Pray reveal to me the divine form, the form of Vishnu with 4 arms. O Lord of Celestials, abode of the universe, be gracious. तो हे कृष्ण, मैं बहुत इस आपके अद्भुत रूप को देखकर मैं बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम मेरे को बहुत, मैं भयभीत महसूस कर रहा हूँ। कृपया ये फॉर्म, ये विराट रूप हटा के अब मेरे को अपना चतुर्भुज रूप दिखाइए। कृपा मेरे ऊपर कृपा कीजिए। I wish to see you adorned in the same way with a diadem on the head and holding a mace and a discus in 2 of your hands, O Lord with 1,000 arms, O universal being, appear again in the same form. तो हे भगवान, कृपया आप अपने चतुर्भुज रूप मेरे को दिखाइए, जिसमें आपके सिर पे मुकुट है और शंख, चक्र, गदा और पद्म है। तो चतुर्भुज रूप मुझे दिखाइए। Shri Bhagavan said, Arjun, pleased with you, I've shown you through my power of yoga the supreme, effulgent, primal and infinite
cosmic form which was never seen before by anyone else than you. तो अर्जुन, मैंने तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें अपना विराट रूप दिखाया है जो कि कभी किसी के द्वारा नहीं देखा गया. Arjun, in this mortal world, I cannot be seen in this form by anyone else than you, through study of the Vedas or by rituals or again through gifts, actions or austere penances. तो अर्जुन, मुझे इस विराट रूप में कोई किसी भी तरह से वेदों का अध्ययन करने से, जप तप और जप तप आदि करने से, यज्ञ हवन आदि करने से, कोई भेंट चढ़ाकर या कोई भी कठिन तपस्या करके मेरा ये रूप नहीं देख सकता है. Seeing such a dreadful form of mine as this, be not perturbed or perplexed. With a fearless and tranquil mind, behold once again the same four-armed form of mine. तो तुम नर्वस ना हो मेरे इस रूप को देखकर. अब मैं तुम्हारे लिए अपना चतुर्भुज रूप दिखाता हूँ. Sanjay said, having spoken thus to Arjun, Bhagwan Vasudeva again revealed to him in the same way his own form, and then assuming a genial form, the high soul Shri Krishna consoled the frightened Arjun. तो विराट रूप हटाकर भगवान ने अब अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखाया पल भर के लिए, और फिर अपने नॉर्मल श्री कृष्ण वाले रूप में आ गए. Arjun said, Krishna, seeing this gentle human form of yours, I've regained my consciousness and I'm myself again. तो ही कृष्ण, आपका ये ह्यूमन फॉर्म देखकर, नर रूप देखकर मैं शांत हुआ हूँ और मैं अपने नॉर्मल सेल्फ में आ गया हूँ. Shri Bhagavan said, this form of mine with four arms which we have just seen is exceedingly difficult to perceive. Even the gods are always eager to behold this form. तो ये चतुर्भुज रूप मेरा हर कोई नहीं देख सकता है. ये तुम पे मेरी असीम कृपा है, इसलिए मैंने तुम्हें दिखाया है. ये देवी देवता भी बहुत ज़्यादा उत्सुक होते मेरा ये रूप देखने के लिए, लेकिन वो भी, उनको भी मैंने कभी नहीं दिखाता हूँ. Neither by study of the Vedas, nor by penance, nor again by charity, nor even by ritual can I be seen in this form as you have seen me. तो ना वेदों के अध्ययन से, न जप तप से, न दान से, और न किसी हवन आदि से, तपस्या से मैं इस चतुर्भुज रूप में किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ. Through single-minded devotion, however, I can be seen in this form, known as essence, and even entered into obedient Arjun. लेकिन अनन्य भक्ति से मैं चतुर्भुज रूप मेरा देख सकता है भक्त, और मेरे में लीन हो सकता है, मर्ज हो सकता है. Arjun, he who performs all his duties for my sake, depends on me, is devoted to me, has no attachment and is free from malice towards all beings, reaches me. तो अर्जुन, ये मेरा चतुर्भुज रूप कौन देख सकता है? जो अनन्य भाव से मुझे भक्ता है और जो सारे कर्म मेरे अर्पण करके करता है, अनासक्त होके करता है, और जो मेरे ऊपर कंप्लीट सरेंडर करके भाव से रहता है, और जो मेरे को बचता है, जो अनासक्त है और जो निर्वैर है, सब प्राणियों के प्रति निर्वैर है, ऐसा पुरुष मेरे को पा जाता है. तो इस तरह से भगवान का ये 11वां अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन संवाद रूपी भगवद गीता का ये 11वां अध्याय समाप्त होता है, जिसका नाम है द योगा ऑफ विजन ऑफ द कॉस्मिक बॉडी. द योगा ऑफ विजन ऑफ द कॉस्मिक बॉडी, यानी द योगा ऑफ विराट रूप देखने का योग. विराट रूप देखने का योग रूपी ये 11वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है. अगली सिटिंग में हम 12वां अध्याय करेंगे. धन्यवाद. जय श्री कृष्ण.